Alright, so hey there guys, once again welcome back to my Instagram live. This is your host Shreya Maheshwari, and again we have a prominent guest coming on board with us live today. So yes, ladies and gentlemen, we are having the world famous celebrity astrologer, also a life coach, a motivational speaker and a TEDx speaker, Dr. Sandeep Kochhar. So ladies and gentlemen, a big round of applause to Sandeep Kochhar for the amazing work he is doing. So he is a celebrity coach, coach as well. And ladies and gentlemen, if you have anything to ask him, you can definitely comment down below. कोई भी सवाल आपको पूछना है related to your life, related to anything, you can comment down below. So he is a life coach, he is a motivational speaker. Anything that you are struggling with, कोई भी ऐसी negativity है जिससे आप जूझ रहे हो, you want to have a right solution to it, और ऐसा कोई सवाल है जो जिसका जवाब आपको चाहिए, something very supernatural, and you are not finding the right way, or you want to talk to a right person, so he is the right one to ask. So yes, ladies and gentlemen, we have Dr. Sandeep Kochhar coming live and loud with us in a while. So till then, all the guys out there, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, you want to ask him, you can definitely comment down below. मैं आपका सवाल उन तक पहुंचाने की बिल्कुल कोशिश करूंगी. So hello to Anchor Pooja and to all my lovely viewers out there who are watching us live. Alright, so yes, so just give me a while. हम उन्हें ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद आपके सवाल हम उन तक बिल्कुल पहुंचाएंगे. So yes, आपको अगर कोई भी सवाल पूछना है, so firstly you'll need your name. I'll need your name and आपका date of birth, आपका date of year, birth year, and साथ ही साथ आपका टाइम, जिस वक्त आप बॉर्न हुए हो. लाइक अगर आप मॉर्निंग 7 o'clock बॉर्न हुए हो, you have to mention that as well. So आपका नाम, आपका date of birth, आपका ईयर, जिस ईयर में आपकी बर्थ हुई है, एंड योर टाइमिंग एज वेल, जिस समय पे आप बॉर्न हुए हो. सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द लिस्ट जो आपको फॉलो करना है. आपको उसके अकॉर्डिंग आपका सवाल पूछना है. सो नेम एंड ऑल, एंड जो भी पूछना है. येस, आई एम ऑलरेडी गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टुडे, सो थैंक यू. येस गाइस, वी आर गोना जॉइन हिम इन अ वाइल. सो टिल देन आप अपने सवाल रेडी कर लीजिए, आपको क्या क्या पूछना है एंड किन किन समस्या से आप जूझ रहे हैं. सो येस गाइज, वी आर गोना गो लाइव विद द वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर इन अ वाइल, डॉक्टर संदीप कोचर. और अगर एस्ट्रोलॉजी के अलावा भी अगर आपको कोई सवाल पूछना है रिलेटेड टू योर लाइफ, वो ही इज़ ऑल्सो अ सेलिब्रिटी लाइफ कोच. सो अगर आपको कोई आपके लाइफ के ऊपर कोई सवाल पूछना है कि कौन सा करियर आपको चूज़ करना चाहिए, कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट होगा, कौन सा प्रोफेशन इज़ द राइट प्रोफेशन फॉर यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो. और साथ ही अगर आपको कोई नेगेटिविटी है, आपके घर में कोई नेगेटिविटी है जो आप जिससे ओवरकम होना चाहते हैं, यू आर नॉट फीलिंग मोटिवेटेड एनी मोर. सो इन दिस पेंडेमिक इट्स वेरी नेचुरल फॉर अस टू फील अनमोटिवेटेड. सो ये मोटिवेशन ज़्यादा टाइम तक हम लोग नहीं होल्ड करके रख पा रहे हैं. आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट. सो अगर आपको ऐसा कुछ है कि आपको मोटिवेटेड रहना है, यू रियली वॉन्ट टू live your life in a motivated manner, you want to live your life in a positive way, then you can definitely comment down below. We'll definitely find a solution to it. And yes guys, so I believe we are about to go live with him, so I'm going to send him the request. And yes guys, get ready with your questions, because Dr. Sandeep Kochhar, the world famous celebrity astrologer, is coming live with us in a while. So guys, stay tuned with me for the whole time, because आज का जो सेशन होने वाला है, it's gonna be very informative. So कोई भी सवाल है जो आप पूछना चाहते हो, you can definitely comment down below. Yes, thank you. So thank you for bearing me with my camera. I was having some issue, वो गिर जा रहा है, so thank you. Yes guys, so I believe now we are all set and ready to send him the request. So मैंने उनको already एक request भेज दिया of me coming live. So yes, आप अपने questions लिख लीजिए on a piece of paper, so that it will be easy for you to ask during the session. Otherwise ऐसा ना हो जाए कि आपका कोई सवाल रह जाए, कुछ मिस हो जाए. So कोई भी सवाल आपका है, आप प्लीज़ उसे एक piece of paper पे लिख लीजिए, तो वो बेटर रहेगा हमारे लिए और आपके लिए भी, कि आपका कोई भी सवाल मिस ना हो जाए. That is the only motive. A lot of people have joined us. Thank you so much guys.
Okay, you have done a great job. Thank you, thank you, thank you. So the only reason I am doing this, a lot of people, you might have the query ke, why Shreya you coming up with a new guest on live. So the only reason is that to keep you guys motivated, because आप लोग, it's natural that you can't go to any concert, any live concert or any event, you can't attend any event. So ऐसे situation में people sometimes they get demotivated and वो motivation रहता नहीं है, you feel negative. So ऐसे जो पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ है, हु वी नो, हु वी लव, सो इनसे बातें करके ऐसा लगता है कि दैट यू हैव अचीव्ड समथिंग, के लाइक जो भी अचीवमेंट आपका लाइफ में है, यू हैव अ गोल, वो अचीवमेंट आप उसे आप ले सकते हो, एंड उनकी जो गलतियाँ उनने की होगी पास्ट में, उनसे हम सीख सकते हैं. वी शुड लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स. सो उनसे हम सीख सकते हैं, वी कैन लर्न फ्रॉम देयर जर्नी. सो दैट्स द ओनली मोटिव आई डू दिस. So to all the viewers out there जो अभी से they are commenting their issues, so guys I would love अगर आप ये constantly करते रहे. The reason is बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं. सो ऐसा ना हो जाए कि मैंने एक का क्वेरी लिया है और आपका क्वेरी उसके नेक्स्ट आने की वजह से वो क्वेरी कहीं ऊपर चला जाए, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्क्रॉल. सो आप उसे कॉन्स्टेंटली भेजते रहिए जब तक आपका कॉन्स्टेंटली, यानी कि हर मिनट में मत भेजिएगा. सवाल अगर आपको लग रहा है कि ख़त्म हो गया है, उसका जवाब हमें सामने वाले पर्सन को मिल गया है, तो आप अपना क्वेश्चन फिर आप वापस से सेंड कर सकते हैं. उससे क्या होगा, वो ईजी हो जाएगा. अदरवाइज वो स्क्रॉल करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. All right, so our guest Sandeep Kochhar has joined us. All right, ladies and gentlemen, so please welcome on board the world famous celebrity astrologer right with us in a while. Ladies and gentlemen, we have Dr. Sandeep Kochhar coming live and loud with us. Let's give him a big round of applause. He's a life coach, he's a motivational speaker, a celebrity astrologer, and also an actor. All Hello. right. Thank you so much, sir, for coming. A big round of applause for you. Thank you so much. You are doing great job. It's Sorry, an honor I'm to be on board, sir. It's an honor. Yeah, thank you. I'm a bit late. That's Just got stuck. absolutely fine. It's okay. It's okay, sir. Yeah. So how All are you right. doing? I am doing good. As you can see, बहुत tired हूँ मैं. Today I'm very tired. You are looking great. You are looking great. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah. All right, sir. So, firstly, आपका क्वारंटाइन कैसा जा रहा है? So how are you spending these days? No visits as of now. People are or no clients. So you are giving them free online consultations. So Yeah, online is something, technology has become so good that there's no difference in meeting people and doing it online, so there's no difference actually. Even so I think it is all good. बाकी quarantine तो it is all good. मैं तो एक पोएम भी लिख रहा था उस दिन, वो अभी कंप्लीट नहीं हुई, कि वो भी क्या दिन थे जब हम क्वारंटीन थे, बातें दीवारों से करते थे जबकि घर में और 3 थे. So I will complete that. That's a good one. That's a good one. Yeah. Tell me. Right, so आपका so, कैसा चल रहा है? I believe you are a poet as well now. आपके जितने भी आप लाइफ कोच है, आप मोटिवेशनल स्पीकर है, आप TEDx स्पीकर भी है, सो पोएट भी है, वो भी हम नेक्स्ट एक नया टाइटल आपके नाम के आगे लग जाएगा. I think life makes you a poet, because जिंदगी में कितनी चीजें होती रहती हैं जो हम नहीं सोचते हैं वो हो जाती है, तो यू बिकम फिलोसोफर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. एंड मेरा जो प्रोफेशन है एस्ट्रोलॉजी का, तो उसमें ना सिर्फ खुद की जिंदगी पर औरों की जिंदगी देखने का मौका मिलता है. और आपको पता है कि कैसे किसकी जिंदगी में सोचा क्या, हुआ क्या, और कई बार यू गेट समथिंग बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन. समटाइम यू पुट एनर्जी एंड यू डोंट गेट इट. इट इज ऑल अबाउट टाइम. सो आई थिंक एक फिलोसफिकल बेंड ऑफ माइंड हो ही जाता है, और पोइट बनने के लिए मुझे लगता है कि एक फिलोसफर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो आई कीप ऑन राइटिंग. वैसे भी कोई वजह नहीं थी आज कुछ लिखने की, और बेवजह लिखने की मेरी आदत हो गई है. तो आई थिंक you are a शायर as well now. Yeah, this is what I believe in. Yeah. All right, so we would really love to आपका जब वो जो पोइट्री फिनिश हो जाए, then please post it on your Instagram. We will definitely like it a lot, and I believe you'll get an instant hit for all the poetries you will prepare. So I really look forward for this. आपका जो भी पोइट्री है, I believe बहुत अच्छा जाए. And yes, so we have a very serious question coming up, popping right here.
So it's from Anita Yadav. She is asking, my son Siddhant Yadav is missing from the school since 29 December 2019. And his date of birth is 25th. नहीं देखिए ये वाले क्वेश्चन का आंसर तो मैं नहीं दे सकता, बिकॉज दिस कम्स अंडर प्रश्न लगन विच आई डोंट यूज एट ऑल, एंड इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर इवन, सो आई एम सॉरी आई कांट आंसर इट. सो लाइफ के दूसरे जो एस्पेक्ट हैं वो आप मुझसे पूछ सकती हैं, बट नॉट समथिंग लाइक दिस, बिकॉज आई शुड टेल यू फ्रेंकली दैट व्हाट आई डू एंड व्हाट आई डोंट. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. All right, not a problem. Okay, so we have our next question. That is from Gaurav Soni. Birthday is 17/10/1991. 17? And 17/10. It's 10. I believe, yeah. October. October, yes. Yeah, 1991. 1991. Time is 7 a.m. 7 in the morning. Place of birth? Nagaur. And the question is career in stock market. आप सारे क्वेश्चन वो लाएंगे ना जिनका कोई जवाब नहीं, बिकॉज स्टॉक मार्केट में मालूम है मौसम खराब है, अभी बैंड बजी पड़ी है दुनिया की, तो इसमें ये कैसे नागौर कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश? I'll have to check that. The person जिन्होंने अभी ये क्वेश्चन किया है, can you please write down कि नागौर कौन से स्टेट में आता है? Alright, so till then we have another question. बाकी मैं इनके लिए नहीं इनका मैं पहले बता देता हूँ. देखिए इनका क्या है, ये भी शॉर्टकट में बहुत बिलीव करते हैं, और इनको आप समझाइए कि आपसे नहीं हो पाएगा तो ये कहेंगे नहीं मैं जरूर करूंगा. तो इज क्वाइट ए मोटिवेटेड पर्सन, तो बहुत करेजियस हैं, और करेज की वजह से अपनी सारी जिंदगी को मुश्किल में डाल देते हैं. इनको समझाना भी उतना ही मुश्किल है, और इनको डिप्लोमेसी की स्पेलिंग आती नहीं है, तो अपने सारे रिलेशन ये अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से ब्रेक कर लेते हैं. डू यू नो हिम? आप जानती हैं इनको? नहीं, ये सारे जो क्वेश्चन है ये सब व्यूअर्स की तरफ से आ रहे हैं. ओके, तो ये अगर सुन रहे हैं तो ये मुझे बताएं कि व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट हिम इज इट राइट? तो ये इनका एक प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि इनको इस पे काम करना चाहिए. ईगो इनका हर्ट हो जाता है, बहुत जल्दी एग्रेसिव ये हो जाते हैं, और मेंटल पीस रहती नहीं जो इनको चाहिए, बट वो नहीं रहती बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर थिंग्स. तो मैं इनको यही कहना चाहता हूँ भाई साहब, 5 जून से 5 दिन के बाद जब जून शुरू हो रहा है वहां से, तो इट विल बी ए डिफिकल्ट ईयर्स फॉर हिम. 2.5 years विल बी क्वाइट डिफिकल्ट. अगर जितने पैसे लगा देंगे शेयर मार्केट में, मैं दावे से कह सकता हूँ कि सब के सब डूब जाएंगे. तो इनको बिल्कुल भी 1% भी, 1 रुपया भी शेयर मार्केट में नहीं लगाना है. वैसे भी ये टर्बुलेंस दौर है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली. इट इज ए ग्लोबल रिसेशन इन 2020 एंड इन 21. सो आई थिंक इनको ये बात समझनी चाहिए, अदरवाइज ही विल लूज हिज मनी. तो दैट इज द पर्पस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम. इट इज नॉट कि आप कितने होशियार हैं, आप कितने चालाक हैं, अरे मुझे सब पता है और मैं तो बहुत पैसे कमा चुका हूँ. वक्त का आपको नहीं पता, और वक्त बिगड़ चुका है, तो ये बात इनको नहीं पता. तो मैं इनको यही एडवाइस करना चाहता हूँ, ये बार बार इनको वो करना चाहता हूँ, डिस्करेज करना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में पैसे ना लगाएं और किसी तरह का रिस्क लेने की कोशिश ना करें. All right, sir. Okay. So the next question is from Anil. So he is asking Anu Chaudhary, 30 March 1987. Time is 8:15 a.m. Rohtak, Haryana. Question is government job and hope. नहीं, आपने बहुत जल्दी बोल दिया. 30th of March 1987. 1987. हाँ, टाइम 8:15 a.m. 15. Yes. रोहतक इन हरियाणा. ओके. हाँ, ये हरियाणा के लोगों को ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है. ज्यादातर लोगों के चाचा जी और ताऊ जी तो पुलिस में होते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब की आदत इनको हो जाती है. तो देखिए ये भी बहुत ही दबंग किस्म के इंसान हैं, और चौधरी हैं ये भी अपने गांव के, और इनको ये डोमिनेंस बर्दाश्त नहीं है. ये वैसे भी किसी के ऑर्डर लेना इनको पसंद नहीं है, तो खुद ही सरकार बनना चाहते हैं, और खुद अथॉरिटेटिव तरह का नेचर है इनका, थोड़ा सा अथॉरिटेटिव तो वो है. तो देखिए इनका जो चेंज आएगा अभी, तो वैसे तो 33 इयर्स इनका कंप्लीट हो गया. वैसे भी मेरा भी 30 मार्च बर्थडे होता है, इनके बर्थडे वाले दिन. तो 2023 में मेजर चेंज आएगा 3 साल के बाद. अब 3 साल के बाद गवर्नमेंट जॉब के चांस हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, बिकॉज एज ऑलरेडी इनकी 33 हो चुकी है. तो आई डोंट नो अबाउट दैट, बट एक चीज मैं जरूर कह सकता हूँ कि ये रियल स्टेट में बहुत अच्छा कर सकते हैं. किसी भी ब्यूटीफुल चीजों को करने की इनकी टेंडेंसी हमेशा बनी रहती है, यानी क्रिएटिव चीजें इनको बहुत पसंद है, और ये हर चीज को ब्यूटीफुल अंदाज से करने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं. और हेल्पफुल नेचर है, ये सबकी मदद करने में सबसे आगे रहते हैं. ये बोलेंगे कि मैं शादी कराऊंगा लोगों की,
मैं ये संस्था चलाऊंगा, मैं खाना खिलाऊंगा, उस तरह का इनका हेल्पिंग नेचर है। ये इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है और लोग इनको इसीलिए लाइक करते हैं। तो भाई साहब आप गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करिए, मैं बिल्कुल भी आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि कीप योर ऑप्शंस ओपन, गो विद द फ्लो, दैट इज अ राइट वे टू लिव योर लाइफ। अगर आप चाहते हैं तो एक पुखराज बन सकते हैं। पुखराज और माणिक, रूबी और येलो सफायर जिसको हम कहते हैं, वो इनके लिए जिंदगी भर इनके काम आने वाला है। ऑलराइट सर, ओके। सो एक और सवाल हमारे पास यहाँ पर आया है फ्रॉम अक्षर। ही इज आस्किंग, सर मुझे फ्यूचर में क्या प्रोफेशन चूज करना चाहिए? हिज डेट ऑफ बर्थ इज 9 सितंबर 2001। 2001? यस, अच्छा, 18 साल के। हाँ, 9 सितंबर 2001 एंड ही इज फ्रॉम नहीं फुलेरा, टाइम, राजस्थान। टाइम इज टाइम 7:35 PM। 19:35 PM, राजस्थान में फुलवारा। 7:35 सर, 7:35। हाँ, 1935 बोला मैंने उसको। हाँ, हाँ, एंड इट्स फुलेरा, राजस्थान। फुलेरा, वही मैंने कहा, फुलवारा तो कोई आया नहीं। फुलेरा, फुलेरा मिल गया है, करेक्ट। संडे था उस दिन। तो 9 सितंबर 2001, 7:35 PM को पैदा हुए हैं भाई साहब। और देखिए इनको क्या है, हर चीज पे डाउट हो जाता है। अब नॉर्मली होता क्या है कि एस्ट्रोलॉजर से आप पूछेंगे कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए, इट इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। आप ये बताइए कि भाई साहब आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, मेरी ये एजुकेशन है और मेरा ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, क्या मैं ये करूं या ना करूं, दैट इज द राइट क्वेश्चन। अभी आप मान लीजिए बनना चाहते हैं लॉयर, और एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली देख के बोले कि भाई साहब आप सिंगर बन जाइए, तो रॉन्ग क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर हो गया। तो इनकी, वैसे तो मैं बोल सकता हूँ कि ये है बहुत स्ट्रांग पर्सन, और इनका दिमाग भी चाचा चौधरी से तेज चलता है, बिकॉज इनका माइंड बहुत शार्प है। और ये किसी भी चीज की ट्रेडिंग, किसी भी चीज का मार्केटिंग, उस तरह का इनका सोच जा सकता है। तो ये वो एरियाज हैं जिनमें इनको एक्सेल करना चाहिए। बाकी मैंने जैसे अभी आपको बताया, ये भी एक चैरिटेबल चीजों से जुड़ेंगे, ये अच्छी बात है। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा दुश्मन है, इनका नाम क्या बताया था? अक्षत। अक्षय। अक्षय का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है अक्षत, अक्षत दैट वी, वो चावल चढ़ाते ना, अक्षत। अक्षत। अच्छा, तो इनका सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना, वो है इनका डाउट। इनको हर चीज पे डाउट हो जाता है, और ये हमेशा हर चीज में व्हाट इफ, और अगर हो गया तो नहीं हुआ तो उसे करेगा कि नहीं करेगा, तो डाउट में, तो दुविधा में फंस जाते हैं, और डाउट की वजह से इनका रेस्टलेसनेस बढ़ जाता है। दैट इज हिज प्रॉब्लम। बट आई थिंक इनकी राहु की दशा शुरू हुई है लास्ट ईयर। राहु में अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, अनप्लान चीजें होती हैं। राहु मतलब मति भ्रम। तो अच्छा खासा कुछ चल रहा है, अभी कॉलेज में होंगे, लेकिन अब लगता है कि बहुत हुआ। राहु इंसान को शॉर्टकट के लिए प्रेरित करता है। तो ये भी हो सकता है, ये लगे कि यार पढ़ के क्या करूंगा, मुझे कुछ कर लेना चाहिए, अपना बिजनेस करूं, ये करूं। तो ये बहुत मुश्किल समय है। तो ऐसे में बैड नहीं कह रहा हूँ, यहाँ सोच शिफ्ट कंफ्यूजन की बात करूँ, तो मैं इनको यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि पहले भाई साहब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। एजुकेशन से बढ़कर लाइफ में कुछ नहीं है। एक कॉन्फिडेंस होता है, आपको जिंदगी जीने का एक मौका मिलता है। नहीं तो 3 साल के बाद तो फिर आप ग्राइंड में आ ही जाते हो। तो पहले आप उसको कंप्लीट करिए, और अभी 1.5 साल कुछ भी नेगेटिव चीजें मत करिए, पैसे मत फंसाइए, क्योंकि अभी 19 सितंबर से 1.5 साल के लिए इनका एक लो फेज जा सकता है। तो ही हैज टू बी वेरी कॉशियस। तो जस्ट गो विद द फ्लो विदाउट टेकिंग एनी रिस्क इन लाइफ। दिस इज माय एडवाइस टू हिम। ओके, ओके। सो यहाँ पे एक और सवाल आया है। 18 सितंबर 1986। ओके, एंड शी इज आस्किंग दैट शी बर्थ टाइम है 11:40 AM। हाँ, एंड दिल्ली से है, गुरप्रीत उनका नाम है। And she is asking, my family doesn't respect me at all. Please tell me, will I ever get respect from my in-laws? Also, my promotion is due from law. When will I get that? देखिए इनका प्रॉब्लम क्या है, इनको यही शिकायत है। नॉर्मली लोगों को अपनी सास से शिकायत होती है, इनको अपनी मदर से भी शिकायत होगी। तो इनका जो गिले शिकवे हैं वो बचपन से चल रहे हैं, और कभी खत्म होने वाले नहीं है जब तक ये नहीं बदल जाएंगे। तो क्योंकि एक तो ना तो ये चीजों को इग्नोर कर पाती हैं, ना ये चीजों को भुला पाती हैं, और छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाती हैं, डिप्रेस हो जाती हैं। उसकी वजह बहुत सारी है। एक्सॉल्टेड मरकरी है, दिमाग बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा हो जाता है एक्सॉल्टेड मरकरी वालों का, और वो हमेशा अपनी जिंदगी को मुश्किल में डाल देते हैं उसकी वजह से, ज्यादा दिमाग को यूज करने की वजह से। दूसरा बात है, हर चीज को एनालाइज करते हैं। तीसरी बात है कि ये जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन था तो फुल मून, लेकिन उस दिन एक्लिप्स था, चंद्र ग्रहण था। तो मून राहु के साथ आ गया। तो हर चीज को शक की निगाह से देखना, हर चीज को इग्नोर ना कर पाना, और मंगल इनका रूलर है तो रिएक्ट कर जाना, और फिर डिप्रेस हो जाना, ये इनकी बचपन से आदत है, और ये कभी नहीं बदलेगी जब तक ये नहीं बदल जाएंगी। तो और ये सुन रही हैं क्या, क्या नाम है इनका? गुरप्रीत। गुरप्रीत, आप ये बात मेरी सुन रही हैं? डू यू एग्री विद मी?
that every time you are hurt by small little things and everyone around you try to hurt you. This is what you feel every time. तो जब तक आपके ये गिले शिकवे दूर नहीं होंगे, आप रिस्पॉन्ड करिए तो मैं आगे बताऊंगा, तो तब तक आपका लाइफ में कुछ बदलने वाला नहीं है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ शी इज सेइंग यस सर. तो देखिए मैंने इनको एकदम सही पहचाना है. तो ये इनका यही प्रॉब्लम है. तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप डेली प्रेयर्स, आई एग्री शी सेड. देखिए तो थोड़ा सा डेली प्रेयर करिए, थोड़ा सा मेडिटेट करिए, थोड़ा सा भगवान पे आस्था बनाइए. और देखिए परफेक्ट कोई भी नहीं होता है. हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की वीकनेसेस होती हैं, हर इंसान अलग तरह का होता है. तो एक्सेप्टेंस जिंदगी का सबसे बड़ा पॉइंट है. तो जिस इंसान के पास एक्सेप्टेंस है वो इंसान हमेशा जिंदगी में खुश रहता है, नहीं तो फिर कुछ बदलने वाला नहीं. मैं हमेशा कहता था कि अब क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का. गुरप्रीत, जब तुम नहीं बदली तो तकदीर क्या बदलेगी. तो इट इज द चेंज विच यू नीड टू ब्रिंग इन यू. तो आप ऑक्यूपाइड रहिए, बिजी रहिए, कोई ना कोई ऐसा काम करिए जिससे आप ऑक्यूपाइड रहिए. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी अगर स्टोन पे यकीन है तो आप पोखराज बन लीजिए, जो आपकी राशि का भी लॉर्ड है, आपका रिकॉग्निशन का लॉर्ड है, लर्निंग का लॉर्ड है. ये आपको सूट करता है. और एक मोती पहन लीजिए. दोनों स्टोन आपकी जिंदगी भर काम आएंगे. बट यू हैव टू चेंज अ लॉट, नहीं तो ये दुनिया नहीं बदलेगी, आपको बदलना पड़ेगा. तो थोड़ा सा रिलैक्स करिए, जिंदगी को मुश्किल में मत डालिए. और जिंदगी बहुत खूबसूरत है. तो या तो छोटी छोटी बातों पे आप हर्ट हो जाइए, या फिर नजरअंदाज करके नजरिए को बदल के, कहते हैं नजरिए बदलो तो नजारे बदल जाते हैं. तो मुझे लगता है कि इनको ये सोच बदलने की जरूरत है, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प हर. बाकी अच्छी चीजें भी हैं. शी इज अ वेरी क्लीन हार्टेड, प्योर हार्टेड पर्सन. मैं इनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ. अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन वो सारी खूबियां जो हैं वो खामियों में कन्वर्ट हो जाती हैं व्हेन शी इज नॉट एबल टू एडजस्ट एंड एक्सेप्ट. दैट इज हर बिगेस्ट प्रॉब्लम. ऑलराइट सर. सो अगला सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो किसी के तरफ से नहीं आया है, ये मेरा सवाल है आपसे. सर अक्सर हमने सुना है कि नजर लग गई है, नजर लग गई है. थोड़े 5 मिनट पहले पर्सन वाज फिट एंड फाइन, एंड सडनली 5 मिनट के बाद वो पर्सन अचानक से सर में दर्द, एंड फिर नजर लग गई है, एंड फिर वो नजर उतार दे, एंड देन पर्सन इज फिट एंड फाइन. तो क्या नजर जैसी चीज सचमुच में होती है? ऐसा कुछ सचमुच में होता है, या फिर सब एक मन का वहम है? आप कौन से सिटीज हैं? मुंबई. नहीं, मुझे लगता है कि मुंबई से नहीं है. मुंबई में लोग नजर की बात नहीं करते. देखिए मैं क्या कहता हूँ, जैसा माहौल होता है ना वैसी ही थॉट बन जाती है. जिंदगी में दो तरह की, ये जो कायनात है ये दो तरह की एनर्जी चलती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. और ये हमेशा रहेगी. अंधेरा है तो रोशनी है, डर है तो उम्मीद है. बहुत सारी दोनों साइड, यिंग एंड यांग, इसको आप कहिए, नेगेटिव पॉजिटिव जिंदगी का हिस्सा है. तो अगर इंसान अपनी सोच को ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव बना के रखता है तो वहां पे कुछ नेगेटिविटी नहीं आता. मैंने तो इस पे उल्टा एक शेर बना दिया था एक्चुअली, कि वो नजर छुपा रहे हैं नजर लगने के डर से. वो नजर छुपा रहे हैं नजर लगने के डर से, और हम नजरें बिछाए बैठे हैं एक नजर के लिए. तो तो ये नजर लग जाएगी जैसी जो चीज है ना, देखिए मैं ये सब तब एप्लीकेबल होती है जब इंसान का खुद का मन जो है बहुत कमजोर होता है. तब उसे ये नेगेटिव एनर्जी जो है इन्फ्लुएंस करती है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये होता है या नहीं होता, मैं उसमें नहीं जाना चाहता. बहुत सारे यहाँ पे समझदार लोग हैं, सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी परंपरा है, या उनका खुद का जो माहौल है, जिस तरह से वो बड़े हुए, या जो परिवार है. लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर है भी तो उसको निगेट किया जा सकता है. इंसान अपने अगर कनेक्शन को बढ़ाए, एक ही कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. दिल्ली में तो कहते हैं तू जानता नहीं है मेरा मेरा बाप कौन है. तो वो कनेक्शन वो नहीं, कनेक्शन एक बाप जो सबका बाप है, जो द ऑल माइटी सुपर पावर गॉड. तो उससे अगर आप कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको वो नजर लग रही है या कोई गलत नजर से देख रहा है, या आपकी नजर किसी पे है, जो भी आप कहिए, वो सब का सब जो है वो होगा वही जो पॉजिटिव होगा, एंड यू विल ऑलवेज फील प्रोटेक्टेड एंड शील्डेड. So I think I gave you the right answer according to me. So yes, even you change your approach and don't go into that zone. अगर आपका बिलीव है, कहते हैं कि तू जिक्र करेगा. जिक्र मतलब ऊपर वाले को याद करेगा, प्रेयर्स करेगा, मेडिटेट करेगा, मंत्र करेगा, व्हाटएवर आपका बिलीफ है, जो भी रिलीजन है. तो तू जिक्र करेगा तो वो फिक्र करेगा. तो फिक्र का काम ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, आप फिक्र मत करिए, अपने काम करते रहिए. दैट इज इम्पोर्टेंट. वाओ, यू आर डेफिनेटली अ पोएट. और ऐसा सर अगला सवाल मुझे आपसे पूछना था. आप सबके सवालों का जवाब इतने आसानी से दे देते, इतने फ्लुएंसी से दे देते. आप एक जाने माने सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है, वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर है. सर आपको हर एक समय के बारे में पता है कि अब ये होगा, अब वो होगा, आपको खुद का भी पता है. सो क्या आप अपना जो स्केड्यूल है, आपका डेली स्केड्यूल है, आप उन ग्रहों के हिसाब से बनाते हैं, या फिर आप हमारी तरह एक कॉमन पर्सन की तरह आप अपना स्केड्यूल प्लान करते हैं कि आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है? तो इस पे एक शेर लिखा था कि वो मैंने लिखा था कि
बताने चले हैं दुनिया को, और दुनिया से बताने चले हैं दुनिया को, और दुनिया से हैं बेखबर, और खबर बनाने चले हैं और खुद की नहीं है खबर। तो मैं हमेशा बेखबर मोड में रहता हूँ, एंड इट इज अ वेरी अनप्रोफेशनल स्टेटमेंट आई नो आई हैव मेड, बिकॉज मेरा एक मानना है कि जो होना है वो होकर रहेगा। जिंदगी की कहानी पहले लिखी जा चुकी है। आप मुंबई से हैं, मुंबई में तभी फ्लोर पे जाते हैं जब आपकी स्क्रिप्ट बाउंड हो जाती है। तो जब एक बार स्क्रिप्ट फिक्स हो चुकी है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, ना तो सीन में, हाँ थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन आपके डायलॉग में हो सकता है, सीन में चेंज नहीं होता। कि एक क्राइम होने वाला है और आप वहां पे रोमांटिक गाना लगा दें, वो हो नहीं सकता। तो इट इज द लाइफ इज द स्क्रिप्ट ऑफ लाइफ इज ऑलरेडी फिक्स्ड। तो जब हर चीज लिखी जा चुकी है तो फिर चिंता क्यों कर रहे हैं? तो आई ऑलवेज गो विद द फ्लो, आई एम ए वेरी नॉर्मल पर्सन, आई जस्ट गो विद द फ्लो। लोग मुझे फोन करते हैं कि भाई साहब यूएस की टिकट, अभी तो खैर कोई नहीं बुक कर रहा है, बट जब भी करते थे पहले की बात है, तो ये वाला दिन ठीक रहेगा क्या भाई साहब, टिकट बुक कर लें, लंदन जाना है या जिसे अमेरिका जाना है। तो मैं मन में सोचता था कि यार ये आदमी मुझे पैसे भी दे रहा है और मुझसे वो सवाल कर रहा है जिसपे मुझे यकीन नहीं, बिकॉज जो अंदर की जो एनर्जी है ना, उससे बढ़कर कुछ नहीं। मैंने आज तक अपनी टिकट में हर 3-4 महीने में लंदन जाता था, मैंने आज तक नहीं देखा कि कौन सा दिन अच्छा है और कौन सा बुरा है। मैंने देखा कि किस दिन की प्राइस कम है, वो वाली टिकट बुक करी। और ये मैं आपको बता दूं, मेरा पूरा बिलीव है देयर इज ऑलवेज अ राइट थिंग टू डू, राइट टाइम टू डू द राइट थिंग। वक्त हमेशा सही है अगर आपका इंटेंशन करेक्ट है, आपका कॉन्शियस करेक्ट है, और आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ चलते हैं। तो वो वाला इंसान अगर अपने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना ले, और इस कंफ्यूजन से, इस नाम की स्पेलिंग बदल के और ये वाला टोटके करके और ये उपाय करके उस जाल में ना फंस के, एक हैप्पी मोड में, एक पॉजिटिव मोड में, ऊपर वाले का थैंक यू करते हुए अगर जिंदगी को गुजारता है, तो उसे कहीं फंसने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत सही बात कही है। एक सवाल है जो बार बार पॉप होकर आ रहा है, द पर्सन इज वेरी क्यूरियस टू नो, और उनका सवाल मैं बिल्कुल लेना चाहूंगी, बिकॉज स्टार्ट से लेके अभी तक उनका सवाल बहुत बार आ चुका। uh, उनके नाम का क्या फ्लाई है, एक सेकेंड। देखिए, द खुशी पर्सन खुशी प्लीज जी कैन यस यू कर रही है, प्लीज, खुशी जी यस कर वो रही स्क्रोल है, करना पड़ एंड रहा है। आप करिए। मैं लोगों के मैसेज पढ़ रहा हूँ कि पीपल दे डू एग्री विद मी। नॉर्मली क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजर की, आप क्वेश्चन ढूंढते रहिए, मैं बात करूँ। हाँ नॉर्मली जी सर। लोग एस्ट्रोलॉजर पे इसी भरोसे जाते हैं कि शायद वो बता देंगे जो उनके लिए जो सही है। लेकिन देखिए, हाँ हर जी। चीज राइट और रॉन्ग में नहीं होती, देयर इज समथिंग विच इज इन बिटवीन, जो जो समझनी बहुत जरूरी है। तो हमेशा एक्सट्रीम वाली जिंदगी को नहीं जीना चाहिए। मुझे लगता है कि मिडिल पाथ इज ऑलवेज अ राइट पाथ, और जिस दिन वो इंसान समझ गया तो उसके लिए हर पाथ जो है, इवन लेफ्ट बिकम्स राइट। राइट। सो उनका नाम है अमित राणा, और उनका डेट ऑफ बर्थ है 22 नवंबर 1977, हम्म। एंड द प्लेस ऑफ बर्थ इज रोहतक, हरियाणा। टाइम बता देती हैं तो आसान हो जाती है जिंदगी टाइम मेरी। है 13.35, ओके, रोहतक हरियाणा। एंड वो पूछ रहे हैं प्रमोशन इज ड्यू सर, व्हेन विल ही गेट द ड्यू। लग रहा है आपकी फैन फॉलोइंग रोहतक से बहुत ज्यादा है। मुझे भी नहीं पता इस बारे आपने में शो कुछ शो सर। शो होस्ट किए थे क्या आपने वहां पे? नहीं, आई नेवर अच्छा, बीन ओके। टू हरियाणा। अच्छा, क्योंकि आप 4 में से 2 क्वेश्चन तो रोहतक के ले चुके हैं ऑलरेडी। तो अमित क्या जानना चाहते हैं? वो पूछना चाह रहे हैं उनका प्रमोशन ड्यू है, सो कब उनको प्रमोशन मिल सकता है। देखिए, अमित बहुत ही समझदार इंसान है, पहली लाइन, और बहुत इंटेलिजेंट है। इन्हें कोई काम दिया जाए तो वो कभी गलत नहीं हो सकता। गिव हिम एनी वर्क एंड फॉरगेट अबाउट इट, बिकॉज ही विल एबल टू डू इट इन द राइट मैनर। ये इनका सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मल्टी टैलेंटेड है, कुछ भी मैनेज करने की इनकी काबिलियत है। ही इज ऑलवेज नोन एज ए टीम पर्सन। कि किसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दें, तो सब बोलते हैं कि सर अमित को दे दीजिए। तो ये इनकी इतनी तारीफ मैं कभी किसी की नहीं करता, लेकिन इनकी कर रहा हूँ, बिकॉज ही हैज दैट थिंग इन हिम। और मून में इनकी, पूछिए इनसे, कहाँ है अमित? हैं आप यहाँ पे? Am I right? आर यू आपको देयर जो मैं अमित? डिफाइन तो ठीक है आई अमित, डोंट नो वेदर। जब तक वो टाइप करेंगे तब तक मैं बता रहा हूँ। तो ये देखिए, मून की महादशा है इनकी। मून वैसे इनका 6 लॉर्ड है, चलिए कोई बात नहीं, फाइनेंस के हाउस में है, लेकिन वर्गोत्तम है, ये एक अच्छी बात है। रेवती के नक्षत्र में है, जो इनका रिकॉग्निशन का लॉर्ड है, जो 5th लॉर्ड है, द हाउस ऑफ रिकॉग्निशन। तो लग ये रहा है, और इवन जमिनी सूत्र के हिसाब से भी, कि इनको कोई ना कोई अच्छा पोजीशन या कोई अच्छा इंक्रीमेंट इनको मिलने के पूरे पूरे चांसेस। राइट सर। एक जी। और सवाल है फ्रॉम विशाल। विशाल, कैन यू प्लीज राइट योर क्वेश्चन अगेन, बिकॉज आपका क्वेश्चन 2 बार आ चुका है एंड आई कुडंट टेक इट। एंड वन मोर क्वेश्चन इज फ्रॉम हिमांशी। So Himanshi Maheshwari, she is asking, she's from Gwalior,
और उनका डेट ऑफ बर्थ है 26 जून 1998। 26 राइट, 26 यस यस 26 99 26 जून 98 1998 एंड इट्स 5:10 PM। प्लीज। So Himanshi, can you please write a question again because when it's a question, my please take my question so इतना लिखा है and I प्लीज have कहाँ to scroll it again. So Himanshi, can you please can you please write a question again? So नहीं, प्लेस ऑफ यहाँ बर्थ। पे एक और पर्सन है यश, he is asking उनका डेट ऑफ बर्थ है 7/9/2000 टाइम 9/11। 9:11 AM, 9:11 आई बिलीव सुबह। उन्होंने AM PM कुछ मेंशन नहीं किया है। और इसे पूछिए भाई लोगों, देखिए ये आपको धन्यवाद कर रहे हैं, ये कह रहे हैं रियली टेस्ट टू फाइंड माय आंसर। इनको आप भी थैंक कर दीजिए। ह्यूज फैन ऑफ यू। फ्लाइंग, क्या नाम है इनका? इन्हीं का क्वेश्चन लिया था आपने? फ्लाइंग हाई रीच द स्काई। अच्छा, अच्छा नाम रखा है इन्होंने। पर इनको ढूंढने में कई दिन लग जाएंगे भाई साहब। आप ना रियल नेम क्यों नहीं लिखते हैं आप लोग इंस्टाग्राम में? वाई यू फॉलो दीज काइंड ऑफ स्टफ, यू नो अजीब से नाम लोगों के होते हैं, बड़ा मुश्किल है ढूंढना इसे। To all the viewers out there जो बोल रहे हैं कि प्लीज टेक माय क्वेश्चन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्क्रॉल बैक अगेन, सो आप बेटर रहेगा आप प्लीज आपका क्वेश्चन हाँ, ये वापस लोग से जो ये कॉपी अभी पेस्ट देखिए, करते ये जाइए। शुभी ने लिखा है, अब यश अपना टाइम अब बता रहे हैं, अब डेट ऑफ बर्थ कहीं और चली गई है। देखिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ और एक सवाल लिख के अगर आप एक साथ भेज देंगे, वही एक कॉपी साथ, पेस्ट हाँ कर जी। दीजिए। हाँ, दैट इज एंड बेटर। उसे आपका सवाल का जवाब नहीं मिले तब तक आप उसे पोस्ट करते रहिए बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्क्रॉल बैक अगेन, और अब वो प्यारी चला जाता है। प्यारी हाँ प्यारी प्लीज कह रही हैं वो, सर प्लीज कह रही हैं, वेयर इज द डिटेल? तो डिटेल जब तक आपके नहीं आएगी। डिटेल वो ऊपर चला गया है, स्क्रॉल हो गया है। हाँ, तो वही ऑलराइट, वही सो प्रॉब्लम। हियर वी हैव वन फ्रॉम उर्वशी। उनका प्लेस ऑफ बर्थ है भिलाई एंड डेट ये इज देखिए 4। फ्लाइंग हाई, जो एक मिनट मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, फ्लाइंग हाई लिख रहे हैं संदीप सर, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मे बी ऑफ एनी हेल्प डू लेट मी नो। तो आप क्या क्या काम आ सकते हैं भाई साहब, बताइए। वेरी इंटरेस्टिंग। जी बताइए, क्या सवाल है? ऑलराइट, सो उर्वशी उनका नाम है, प्लेस ऑफ बर्थ इज भिलाई एंड नहीं डेट इज नहीं 4। नहीं, पहले पहले श्रेया है ना आपका नाम? देखिए श्रेया, पहले हाँ जी सर, डेट, फिर टाइम, फिर प्लेस। पहले डेट फिर टाइम फिर प्लेस। ओके सर, हाँ ऐसा डेट जी। इज 4 मार्च 1998। टाइम, प्लेस इज भिलाई। नहीं टाइम भूल गए देखिए। टाइम इज 11:40 PM हाँ, नाइट। 2340, हाँ। यस, भिलाई, एंड प्लेस इज भिलाई। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़? आई हैव नो आइडिया सर। मैं एकदम करेक्ट था पहली बार, क्योंकि क्या है, ये ज्योग्राफी और हिस्ट्री की जो हमारे टीचर्स है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे और हम लोग डर के मारे जाते नहीं थे जब होमवर्क नहीं होता था। तो बहुत सारी क्लासेस हमने मिस कर दी। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन भी मुझे नहीं आते, और ज्योग्राफी की मतलब कौन सा सिटी कौन सा स्टेट में है, वो बहुत ही डर के मारे हम नहीं पढ़ पाए। बट एनीवेज, तो इनका सवाल क्या ऑलराइट, है? सो उनका सवाल है नौकरी से रिलेटेड। उनका सवाल है कि लव लाइफ और नौकरी के लिए वो पूछना चाह रही हैं कि नौकरी कब लगेगी और सक्सेस कब तक मिलेगा, और लव लाइफ उनका कैसा रहेगा। मतलब प्यार और व्यापार दोनों का हाँ, सवाल एक साथ कर दोनों लिया ना। साथ में। देखिए वैसे तो ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक इंसान है, बहुत खुश रहती हैं, पॉजिटिव रहती हैं, बहुत समझदार हैं, उम्र से आगे हैं, सुपर एम्बिशन है। इनको बहुत कुछ करना है, मतलब वो करना है जो किसी ने नहीं किया, इतना इनका जज्बा है। ये पूछिए इनसे। और इनको लीडरशिप क्वालिटीज इनकी बहुत खतरनाक है। इनको ऑर्डर नहीं ले सकते। कहाँ गई है? क्या नाम था इनका? उर्वशी। उर्वशी। उर्वशी, आप सुन रही हैं? तो बताइए, तो आर यू लाइक दैट? एंड वेरी इंट्यूटिव शी इज, और जिंदगी में कुछ बड़ा करना है इनको, ये भी कंफर्म है। अभी राहु में चल रही है शनि की दशा, और राहु शनि दोनों से एक दूसरे से 6 और 8 प्लेसमेंट में है, जिसको बहुत ही खतरनाक तरह से नाम बोला जाता है। सुनने में डर लगता है, मैं बोलता नहीं वैसे कभी, अभी बोल देता हूँ एंटरटेनमेंट के लिए कि 6-8 में जब पोजीशन होती है प्लैनेट्स की, तो उसको कहते हैं षटाष्टक। तो सुनते, शी इज सेइंग वेरी ट्रू, तो उसको सुनते ही डर लगता है। षडाष्टक यानी सिंपल फॉर्म में समझाता हूँ कि इसका मतलब ये होता है कि जब दो प्लैनेट एक दूसरे से 6 और 8 में प्लेस होते हैं, तो डिलेज बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। हर चीज रुक रुक के होती है, और पेशेंस इनके अंदर है जीरो। पूछिए, पेशेंस है जीरो। तो इसलिए ये और परेशान हो जाती हैं कि दिस नॉट हैपनिंग, दिस नॉट हैपनिंग, आई वांट टू डू दैट, व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग। तो वो अपनी जिंदगी परेशान हो जाती हैं अपने। देखिए लव लाइफ के लिए मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि अभी तो उम्र है 22 साल की, तो ये उम्र नहीं है प्यार की। एक गाना था, एक्चुअली गा नहीं सकता मैं भी। तो मैं इनको कहना चाहता हूँ कि बिफोर फॉलिंग इन लव, उर्वशी जी, आप वो हॉरोस्कोप जरूर चेक कराइएगा, क्योंकि आपको हैंडल करना किसी के बस की बात नहीं। तो वो इंसान वही आपको हैंडल कर सकता है, या तो वो बेचारा ऊंचा सुनता हो या कम बोलता हो।
तो वो मैं क्या कहना चाहता हूँ ऑनेस्टली इन सीरियस नोट पे बता देता हूँ। देखिए सीरियस नोट क्या है कि वो इंसान, शी इज सेइंग ट्रू अगेन, तो सीरियस नोट क्या है कि वो आपके अंदर एनर्जी इतनी है कि वो डोमिनेंस लगने लगती है। तो वो बार बार कहेगा यार हस्बैंड मैं हूं कि तू है, ऐसा शादी के बाद आपके साथ होगा। ये मैं आपको मेरी याद आएगी इस बात पे। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा जिंदगी में एक्सेप्टेंस, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, जो आप कम है आपके लिए। तो ये मैं आपसे एडवाइस कर रहा था। बाकी देखिए शादी लेट ही होगी तो कोई जल्दबाजी मत करिए। अभी बहुत समय है, यू आर जस्ट 22। मुझे नहीं लगता कि आप 4 साल से पहले आपकी शादी होने वाली है। आई थिंक यू मे गेट मैरिड बिटवीन नवंबर 24 टू नवंबर 27। उससे पहले जो भी मुलाकातों का दौर चलेगा वो बेचारे कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे। मतलब शहीद, मतलब क्या कहूँ मैं उन्हें, मतलब खूबसूरत मोड़ देके आपको छोड़ना पड़ सकता है। तो तब तक अपना एनर्जी और टाइम उस पर वेस्ट मत करिए। वर्क ऑन योर करियर, स्टडी फर्दर, एंड बिकॉज यू आर सो एम्बिशियस। और एक दिन अगर आपको राजनीति में जाने का इंटरेस्ट है, बताइए कभी आपने सोचा कि एक दिन बड़े होके आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकती हैं उर्वशी जी? बताइए, सोचा कभी आपने? क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ तक सोच लेंगी अगर पॉलिटिक्स में जाने की, तो मैं आपके साथ हूँ। यू कैन टीच, ट्रेन एंड कन्विंस एनीवन। बचपन से आप लॉयर हैं, आपको लॉ की डिग्री की जरूरत नहीं। तो आपके अंदर इतनी काबिलियत है, इतना लीडरशिप क्वालिटीज है, मुझे लगता है फोकस करिए आप जिंदगी में कुछ बड़ा करने की। और शादी क्या है, वो तो होती रहेगी। तो लेट मैरिज बेटर देन बैड मैरिज। तो तब तक अपने ऊपर भी काम करेंगे, यू विल बिकम ए बेटर पर्सन, वाइस पर्सन, एंड थिंग्स विल बी ग्रेट। आर यू वेरी एम्बिशियस उर्वशी? बताइए, डू यू रियली वांट टू डू दैट बिग? मैंने इतनी तारीफों के पुल आपके बांध दिए, कहाँ गई उर्वशी? चलिए वो तब तक शीनी आप दूसरा टाइप कर रही है। तब तक आप और दूसरा सो एक और क्वेश्चन सवाल ले। है सर, ये इनको एक, हाँ इनको दैट इज फ्रॉम, एक पुखराज और एक रूबी ये पहन सकती हैं। येलो सफायर एंड रूबी, दैट इज गुड फॉर हर इफ शी वांट। ऑलराइट सर। तो एक सवाल है, दैट इज फ्रॉम माय साइड। आप सबको बता रहे, मेरा भी बता दीजिए। तो सो माय नेम अच्छा, इज, हाँ हाँ हाँ, व्हाई हाँ नॉट, जी। व्हाई नॉट। सो इट्स 8 मार्च ये देखिए, 1999। ये कह रही हैं कि मैं 11-12 में थी जब तब सोचती थी। अरे तब आप सोचती थी तो अब क्यों नहीं सोच रही हैं? उर्वशी ने लिखा है देखिए, हाँ पॉलिटिक्स के जी। बारे में। तो आप सोचिए, मैं तो इतनी तारीफ तो मैंने आज तक किसी की नहीं की। तो आपके अंदर वो पूरी काबिलियत है। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली थिंक बिग, बिकॉज ये कुछ भी बड़ा कर सकती है। इट कुड बी क्रिएटिव, इट कुड बी, बट इनका जो सबसे बड़ा क्वालिटी है वो लीडरशिप वाला है। एंड शी विल बिकम एन एंटरप्रेन्योर। इनको ऑर्डर ऑर्डर लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये जॉब अब नहीं कर सकती किसी के अंदर। बताइए। Alright, sir. So it's my turn now. It's 8 March 1999. 8 मार्च 1999। हाँ जी, एंड टाइमिंग इज 8:05 सुबह AM. प्लेस, प्लेस, प्लेस इज कैलकटा। ये किसका है? मेरा सर। हाँ मैंने कहा था मुंबई से नहीं है। और ये आप कलकत्ता में ज्यादातर ये सब नजर और ये सब वहां पे ज्यादा, ये वहां पे दुकान चलती है इसकी। नहीं आई पर अंडरस्टैंड। सर, मैं बॉर्न एंड बॉटम मुंबई है मेरा, 2.5 महीने नहीं वो जब कोई वापस बात आ नहीं, गई। पर लोग रिश्तेदार हाँ, अरे यस बड़ी यस। प्यारी बच्ची है, इसको नजर ना लग जाए कहीं, तो आई अंडरस्टैंड दैट। देखिए आपका भी वैसे तो आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपको भी किसी को भी कन्विंस करने की आपके अंदर काबिलियत है। लेकिन आपकी 2 वीक पॉइंट हैं। और वो दो एक वीक पॉइंट में से एक यही है कि आपको भी बहुत जल्दी चीजों पे डाउट हो जाता है, जिसकी वजह से आप रेस्टलेस हो जाते हैं कि वो कह तो रहा है, पता नहीं करेगा कि नहीं। अब जैसे मैं नहीं आया 5 मिनट तक, तो लगा पता नहीं आएंगे कि नहीं। आई एम जस्ट सेइंग। तो एक डाउट की भावना आपके अंदर आती है जो आपको रेस्टलेस करती है। तो हमेशा नॉर्मल सिचुएशन में भी रेस्टलेस हो जाने की आपके अंदर टेंडेंसी है। तो वो आपको, दूसरी बात है कि जैसे ही किसी ने गलत तरह से आपसे बात की तो आपने उसकी बैंड बजा दी। तो आपको गुस्सा इतना आता है कि पहले आप गोली चलाती हैं और फिर उसका नाम पूछती हैं कि अच्छा आप नाम तो बता दीजिए, अपना नाम क्या था। तो ये दोनों चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा कि आज की डेट में एक्सेप्टेंस तो है नहीं जरा सा भी किसी का। और आपने अगर किसी को बोल दिया डायरेक्टली तो वो इंसान हर्ट हो जाएगा। और सबके ईगो की प्रॉब्लम है आजकल, सबकी। तो थोड़ा सा आपको उस पर काम करना चाहिए। बट अदरवाइज आप बहुत टैलेंटेड हैं, मुझे लगता है कि क्रिएटिव चीजों में, क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगी एंड यू विल डेफिनेटली डू गुड। थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा अपने फोकस को बढ़ाइए, हैप्पीनेस को ढूंढिए, छोटी छोटी चीजों में नेगेटिव मत ढूंढिए, डाउट मत ढूंढिए, पॉजिटिव ढूंढिए। तो आपके जो ऑरा है, एनर्जी वो है, सब बदल जाएगी। और बहुत कुछ बदलेगा आपकी जिंदगी में। 2021 अगले साल से, 21 से 23 के बीच में, ये 2.5 साल का ट्रांजिशन का दौर है, ये आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा।
और अगर आपका जरा सा भी इंटरेस्ट है कि मुझे इंडिया के बाहर जाना चाहिए, जरा सा भी अगर आपने सोचा है 10%, तो बहुत मेरे ज्यादा हिसाब से इंटरेस्ट है। तो आप 100% मेरे हिसाब से चली जाएंगे इंडिया के बाहर, क्योंकि आपका, और मुझे लगता है 21 से 23 के बीच में ही वो दौर आने वाला है when you may start another journey of your life। तो आपने कभी सोचा कि मुझे वो एजुकेशन के लिए या कहीं कोई जॉब के लिए कुछ यस, बाहर जाना है? यस, मुझे सीएस परस्यू करना था, एंड सीए और सीएस दोनों साथ में, एंड वही बसना है। ओके, तो आपका परमानेंट आपने सोचा हुआ है कि इंडिया के बाहर ही रहेंगी? नॉट परमानेंट, बट या रहने का है, इच्छा है नहीं लंदन नहीं, आप और जाएंगे, फिर आप जाएंगे तो लौटेंगे नहीं, ये तो मुझे पता है। आप अपना हाथ दिखाइए, राइट हैंड दिखाइए स्क्रीन के सामने। आपका माइंड बहुत तेज है, रिकॉग्निशन की लाइन भी आपकी अच्छी है और बाहर का कनेक्शन भी आपका स्ट्रांग है। खाली आप ज्यादा मत सोचिए, बस देख लिया मैंने, आप ज्यादा मत सोचिए, वही आपका वीक पॉइंट। आपका सोते सोते भी आपका माइंड चलता रहता है। अलार्म बजता है, जब अलार्म बजता है सुबह का 7 बजे का, तो आपको लगता है अरे अभी तो लगाया था, बज भी गया। तो फिर आप जब तक काम स्टेट नहीं होगा, रिलैक्स नहीं करेंगी, तब तक उथल पुथल रहेगा माइंड में, और माइंड में उथल पुथल है तो फिर जिंदगी में उथल पुथल है, ये बात याद रखिएगा। तो यू नीड टू लर्न टू रिमेन इन ए काम स्टेट। कोई रश मत करिए, सब जिंदगी में जैसा है वैसा ही चलने दीजिए। अच्छा सोचिए, मेहनत करिए, पॉजिटिव सोचिए। आई बिलीव इन पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, ऊपर वाले पे यकीन रखिए, सारी चीजें ऑटोमेटिकली वैसी ही चलती रहेंगी। और जब भी वो दुविधा है तो आप जरूर किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखा के अपने वक्त को जान लीजिए। दैट इज द पर्पज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, कि मेरा वक्त कैसा चल रहा है, क्या मैं ये जो सोच रही हूँ ये सही है या गलत। जैसे आपने सवाल किया था कि कौन सी लाइन मेरे लिए ठीक है, वो अब आदमी एक पढ़ाई कर चुका है, तो अब वो पूछ रहा है, तो ये रॉन्ग क्वेश्चन है। तो दैट इज समथिंग विच इज नॉट राइट। आपने क्या टैटू क्या बनवाया हुआ, ये क्या लिखा है? शिवम। क्या बात है। तो दैट इज द बेस्ट थिंग एक्चुअली, तो हैव दैट फेथ। तो अगर आपका फेथ स्ट्रांग हो गया तो आई होप कि शिवम आपके बॉयफ्रेंड का नाम नहीं है। मेरे हस्बैंड का है। अच्छा, तो आपने बचपन में शादी कर ली? हाँ, मैंने 18 होते ही शादी कर ली। कमाल है। ओके, तो आपके हस्बैंड भी बाहर जाना चाहते हैं? हाँ जी। चलिए बहुत। तो उनको नहीं लगा कि मतलब कहाँ फंस गए वो? कहते नहीं है वो? कहते तो है। कि तो आपको मैं कहना चाहता हूँ, वैसे आप लकी हैं। देखो, मैंने तारीफ की, एक्सॉल्टेड वीनस वाला इंसान हर ब्यूटीफुल, उसकी जिंदगी के आसपास सब कुछ ब्यूटीफुल हो जाता है ऑटोमेटिकली। मतलब आप लग रहा था कि यार ये 1 BHK से काम चलाते हैं, अचानक कोई डील मिल गई, आप 2 BHK में चले गए या हायर फ्लोर पे चले गए, अच्छी सोसाइटी में चले गए। तो जितनी खूबसूरत चीजें अगर आपके हस्बैंड को मिल रही हैं, तो आई विल गिव क्रेडिट टू यू, ये बात उनको बता दीजिए। तो आपका जो लक फैक्टर है दैट वे वो स्ट्रांग है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। सो तो यू चलिए मीन उनको आई एम संभाल, लकी फॉर हिम। डेफिनेटली तो उनको संभाल के रखिए, लेकिन रिएक्ट मत करिए। प्यार मोहब्बत से बढ़कर, हैप्पीनेस से बढ़कर जिंदगी में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे लॉयर मत बनिए। मैंने आपको क्या कहा था, आप लॉयर हैं। जो आपका आर्ग्यूमेंटेटिव और आपका स्पीच, आपका जो कन्विंस करने का या किसी को सिखाने का, पढ़ाने का जो टेंडेंसी है वो बहुत स्ट्रांग है। तो वो कभी कभी आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दैट इज नॉट राइट। तो लेट गो करना सीखिए, ठीक है? बिल्कुल सर। सर अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी, ऐसा कोई आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, आपको बहुत सारे अलग अलग अजीब अजीब सवाल आपको लोग पूछते होंगे। सो तो ऐसा वो मैं कोई कर ही रहा सवाल हूँ। जी। ऐसा कोई सवाल जिसका जवाब दे देकर आप थक चुके हो, जो मोस्ट कॉमन सवाल हो आपके लिए? नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। क्या कहा था किसी ने, नानक दुखिया हर संसार। हर इंसान के जो बेसिक सवाल है वो उतना ही है। 5 सवालों पे पूरी दुनिया चलती है, कि मैं अपना घर कब बनाऊंगा, मैं विदेश जाना चाहता हूँ, वो विदेश जाना लगा हुआ है, कनाडा वाले मामा जी बुला रहे हैं, तो वो लगा हुआ है। या किसी की शादी नहीं हो रही है, अब किसी की शादी हो गई है तो उसको प्रॉपर जॉब नहीं मिल रही है, यानी पैसे, तो वही बेसिक सवाल है। तो चाहे वो फाइनेंस है, करियर है, उसी का पार्ट है, या फिर आपका लव लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपकी हार्मनी बेसिकली, या मैरिड लाइफ हम बात कर, तो या प्रोग्रेस, ग्रोथ इन लाइफ, या प्रॉपर्टीज। तो यही 4-5 सवाल पे ही इर्द गिर्द सारी सबकी जिंदगी चलती है। कुछ लोग होते हैं जो रियली वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट एंड वांट टू ग्रो बियॉन्ड, या जैसे सबको, मुझे एक उस दिन कोई आया था कि मुझे मुझे मैं भूल गया कहाँ से वो सवाल था, किसी ने, शायद मेरी क्लाइंट थी या कोई लाइव था, मैं तो इतने दिनों से लाइव कर रहा हूँ, भूल ही गया। उन्होंने कहा था आई वांट टू बिकम मदर टेरेसा। तो कितना डिफरेंट सवाल है, लेकिन कितना प्योर सवाल है। इंसान ये नहीं कह रहा है कि मैं अपने बच्चों के लिए कब प्रॉपर्टी कितनी छोड़ूं, उसे दुनिया के लिए मैं कैसे, किस लेवल पे, पूरी दुनिया के लिए कुछ करने के लिए। तो दैट इज समथिंग विच इज सो ब्यूटीफुल। तो कम लोग हैं जो ऐसा सोच पाते हैं, बट दैट इज ब्यूटीफुल। जी।
सर अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, ऐसा कोई सवाल है जो आप चाहते हो कि लोग आपसे नहीं पूछे, लाइक जैसे कोरोना मैं वायरस है, सो पीपल अलग अलग नहीं नहीं सवाल लेके आपके पास आ नहीं रहे नहीं, हैं, सो ऐसा ऐसा नहीं कोई देखिए। सवाल? तो एक सवाल है जिसको मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो लोग पूछते हैं कि बताइए हम हमारी आयु कितनी है, कितना जिंदा रहेंगे। वो ओके। एक रॉन्ग सवाल है। देखिए, अगर आप खुश नहीं हैं तो जिंदा रहने का क्या फायदा। अगर आप खुश हैं तो इससे बढ़िया जिंदगी नहीं। मैंने क्या लिखा था, कभी तो जिंदगी रुक जाती है एक लम्हे के लिए। एक लम्हे में जिंदगी गुजर जाती है, एक लम्हे में, अगर इट इज ब्यूटीफुल। तो कभी तो जिंदगी गुजर जाती है एक लम्हे के लिए, और कभी एक लम्हा भी रुकता नहीं जिंदगी के लिए। तो जब लास्ट मोमेंट आता है तो वो मोमेंट रुक नहीं सकता। दैट इज द लास्ट मोमेंट फाइनली। सो व्हाई डोंट लिव योर लाइफ। एक और था कि माना कि मुश्किल है जरा सी ये जिंदगी। सबकी जिंदगी मुश्किल हो चुकी है। माना कि मुश्किल है जरा सी ये जिंदगी, पर जिंदगी जरा सी है, ये भी तो मुश्किल है। बहुत तो बढ़िया सर, बहुत तो बढ़िया लाइफ था। में। जी। टू हिमांशी दे, हिमांशी जिसका सवाल बार बार आ रहा है, हिमांशी कैन यू प्लीज राइट योर क्वेश्चन अगेन? ऑलराइट, सो सर अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी। ओके, सो ये था सर सवाल कि आपने एस्ट्रोलॉजी ही क्यों चूज किया है? आप एक एक्टर है, एक लाइफ कोच है, मोटिवेशनल स्पीकर है, आप में इतने सारे अलग अलग स्किल्स हैं, देन व्हाई आप एक पोइट भी हैं, आप एक बहुत अच्छी पोइट्री लिखते हैं, सो व्हाई ओनली एस्ट्रोलॉजी? आप और भी प्रोफेशंस चूज कर सकते थे, व्हाई डिड यू चूज एस्ट्रोलॉजी? नहीं, आई थिंक मेरा ये मानना है कि वी डोंट चूज एनीथिंग। हम हमारे हाथ में नहीं होता। वट एवर यू आर डेस्टिन्ड टू, इट कम टू यू ऑटोमेटिकली। I never thought in my wildest dream that I will become an astrologer. In fact, I was a cricketer. I wanted to play for India, and I was very good in leg spin करता था, googly करता था, and then it didn't happen, But अगर मैं cricketer हो गया होता तो मैं retire हो गया होता. I played with Rahul Dravid for 2 years, and I was very good actually. बट सर्कमस्टांसेस चेंज हुए, और उसके बाद आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर आंसर्स अबाउट माय लाइफ। तो एस्ट्रोलॉजी सीखी थी अपने खुद की जिंदगी को जानने के लिए, ना कि उसको प्रोफेशन बनाने के लिए। सो एवरीथिंग हैपेंस टू यू, इट कम्स टू यू, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू ऑलरेडी। तो वो आप जिंदगी की तलाश कर रहे थे और जिंदगी आपको ढूंढ रही थी। तो वो वो ऐसे ही होता है आपके साथ। तो जैसे आपने सवाल किया था शुरू में ही, मुझे गुस्सा आया था कि व्हाट इज द राइट प्रोफेशन। इट इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। It is 100% a wrong question. It is not what you choose. Tell me what you have in your mind. ये यहाँ जो है ना, ये अचानक बाय चांस कुछ नहीं होता। Everything comes to you and it has a purpose. It has a reason. कोई भी चीज बेवजह नहीं होती। राइट। It's always इत्तेफाक इत्तेफाक। सो आपने कभी सोचा नहीं है क्रिकेट को कंटिन्यू करने का? बिकॉज नाउ यू हैव एवरीथिंग, यू आर अ सेलिब्रिटी अब, सो आपके लिए डोंट यू थिंक इट्स इजी फॉर यू टू बिकम अ क्रिकेटर नाउ? अगर आप क्रिकेट में भी जाते हैं, देन आपका टैलेंट भी है ऑलरेडी उसमें, सो यू कैन अचीव। नहीं, अब मुझे मुझे जहां भी मौका मिलता है मैं क्रिकेट जरूर खेलता हूँ, मैचेस खेलता हूँ। मैंने तो फर्स्ट लेवल डिवीजन के मैचेस दिल्ली में भी खेल लिए अभी, इतने सालों के गैप के बाद। और इवन बैंकॉक में मेरे एक फ्रेंड की एकेडमी है क्रिकेट की, वहां जाता हूँ। वहां पे बॉलिंग मशीन है, वहां पे मैं हमेशा जाता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, उनके मैचेस खेलता हूँ। इवन लंदन में लॉर्ड्स में मेरे एक फ्रेंड है, उनका बेटा क्रिकेटर है, तो वो उसके सेशन होते हैं, तो वहां जाके मैं बॉलिंग भी करता हूँ, बैटिंग भी करता हूँ लॉर्ड्स में। तो ठीक है, मुझे डायरेक्ट मैदान में वैसे टीम में जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने वो सारे एक्सपीरियंस कर लिए जो मुझे कर लेने चाहिए। आई एम हैप्पी विद इट। ऑलराइट सर, ओके। सो एक और सवाल से मुझे पूछना था, आप इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, वो फर्स्ट इम्प्रेशन क्या रहता है जब लोग आपको फर्स्ट टाइम मिलते हैं? लाइक यू आर नॉट लाइक अ बाबा जी टाइप, जो एक सफेद धोती पहन के, इतनी बड़ी माला पहन के सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द पर्सन, सो यू लुक सो मॉडर्न, यू आर सो मॉडर्न, सो फैशनेबल। सो जब पर्सन, आपका जो क्लाइंट है, जब फर्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं, उनका रिएक्शन क्या रहता है आपको देखकर? देखिए, जो जिसे मुझे नहीं देखा होता है वो अपॉइंटमेंट लेके आ जाता है मिलने, और मैं कैबिन में जब उनको वेलकम करता हूँ तो वो यही देखते हैं कि अरे बेटा, पापा नहीं आए क्या। तो 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 मुझे तो, जो आप कह रही हैं बात सही है, जो परसेप्शन है ना, वो एस्ट्रोलॉजी का वो वही है। बाबा जी, पहले जमाने में एस्ट्रोलॉजर वही हुआ करते थे, बड़े बड़े बाल और टीका लगा के, धोती कुर्ता पहन के। लेकिन वक्त बदला है, हालात बदले। अभी अभी कल बेजान दारू वाला जी चले गए। मैंने उनके लिए लिखा अपने इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, फेसबुक में। मैं उनसे 3-4 बार मिल चुका हूँ, बहुत अच्छी बातें हुई थी। तो आई फेल्ट गुड। ही वाज अ वेरी प्योर सोल।
वो होशियारी चला के नहीं करते थे, वो अपने मस्त अंदाज में करते थे। तो वो एक उन्होंने एक नया, हाँ मैं उनका नाम क्यों ले रहा था कि उन्होंने एक ऐसे वाले जमाने में जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर मतलब पंडित जी, अभी भी कई बार मुझे लाइव शो में मैं कहीं भी करता हूँ तो पीपल जो मुझे नहीं जानते वो उनको आदत होती है एस्ट्रोलॉजर से बात करने की। अरे पंडित जी ये बताइए, तो मैं कहता हूँ पंडित जी तो चले गए, अब मुझसे पूछना है तो कुछ पूछ लीजिए। तो पंडित जी वॉज ए परसेप्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजर, लेकिन भजन दारूवाला जी ने चेंज किया। पहले तो वो खुद ही ब्राह्मण नहीं थे, और फिर उन्होंने एक मॉडर्न अटायर में अपने एस्ट्रोलॉजी को निभाया। दिस इज समथिंग डिफरेंट, तो मैंने उनको सैल्यूट किया तो उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए। एंड आई एम ऑल्सो इन दैट सेम काइंड ऑफ लाइन की आई डोंट लुक लाइक एस्ट्रोलॉजर, आई डोंट टॉक लाइक एस्ट्रोलॉजर। लोग मुहावरे सुनाते हैं, श्लोक सुनाते हैं, दोहे सुनाते हैं, मैं पोइट्री सुनाता हूँ, खुद की शायरी। पड़ोसी की भी शायरी यूज नहीं करता, खुद की शायरी यूज करता हूँ। तो आई थिंक इट इज अ डिफरेंट थिंग। जब मेरा जी में शो स्टार्ट हुआ था 2005 में, तो 6 महीने तक लोग यही सोचते रहे शायद मैं एंकर हूँ और कुछ पढ़ के बोल रहा हूँ। फिर यार उनको रियलाइज हुआ कि यही एस्ट्रोलॉजर है भाई, ये कैसा एस्ट्रोलॉजर है, ऐसी स्लीव ऊपर करके और ऐसे टी शर्ट में और शर्ट में ऐसे करके। तो वो 9 साल वो शो चला, लॉन्गेस्ट रनिंग शो बन गया इंडिया का। तो गॉड हैज बीन काइंड। तो अगर आप, मुझे लगता है कि इफ यू आर ट्रू टू योरसेल्फ, मेरा ये जरूर मानना है कि आपको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी एक्टिंग भी आप सीखने जाएंगी तो सबसे पहले वहां पे ये सिखाया जाएगा कि एक्टिंग इज द राइट एक्टिंग इज व्हेन यू आर नॉट एक्टिंग एक्चुअली, व्हेन यू आर नेचुरल इन योर डीड्स, इन योर saying something, doing something, enacting something, that is real acting, where you don't need to act. तो मुझे लगता है जो आपका ट्रू सेल्फ है, अगर आप वो लेकर आते हैं तो देन यू विल डू योर बेस्ट। एंड व्हेन यू हैव टू प्रिटेंड टू बी समवन, अगर आप किसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता है, व्हेन आई यूज्ड टू वियर ए गोटी, तो जितने एस्ट्रोलॉजर उसके बाद आ रहे थे मार्केट में, सबने वो रखना शुरू कर दिया। तो मतलब सब वैसे ही बन गए संदीप गुर्जर। तो व्हाट आई एम सेइंग, एक ट्रेंड बन जाता है, लोग फॉलो करते हैं। तो फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एवरीवन हैज हिज ओन आइडेंटिटी, एवरीवन इज गुड इन हिज ओन वे। तो अपने ट्रू चीजों को अगर आप लेके चलती हैं तो आई थिंक यू डेफिनेटली गेट सक्सेस। यू डोंट नीड टू कंपेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। लोग कंपेयर में आधी जिंदगी तो लोग कंपेरिजन में निकाल देते हैं और बहुत उनको उस बात का तकलीफ होती है, क्योंकि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसी, ये जो सिचुएशन है, निर्मा की एड थी, ये हमें परेशान करती है। तो आई थिंक यू जस्ट लिव योर लाइफ एंड बी हैप्पी एंड डू योर बेस्ट, दैट इज द राइट थिंग। राइट सर। तो सर एक सवाल है जो बार बार पॉप हो रहा है, एंड राज गोस्वामी इज अक्यूजिंग मी फॉर नॉट टेकिंग हिज क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट 50 times he has posted that, उनका ये कहना है। सो राज गोस्वामी, इट इज नॉट लाइक दैट, वी हैव अ लॉट मोर क्वेश्चंस पॉपिंग अप। सो राज जी का मैं सवाल लेना चाहूंगी यहाँ पे। ही इज आस्किंग उनका करियर कैसा रहेगा, खुद का घर एंड फ्यूचर कैसा रहेगा। सो इट्स 7 December 1985 at 8:24 AM. Place of birth is Ulhasnagar, Maharashtra. देखिए 7th of December, राइट? Yes. 7 December 85 वो सैटरडे था, 8:24 in the morning, उल्लासनगर, महाराष्ट्र। तो देखिए इनका ये जिंदगी को मुश्किल में डाल देते हैं, क्योंकि सोचते बहुत हैं और बहुत डिटेल में चले जाते हैं। रिसर्च वाला माइंड है, इसलिए जरा जरा बात को उधेड़ बुन कर, यानी ये उधेड़ते ज्यादा है, बुनते कम। और इन्होंने एक फैक्ट्री भी लगा रखी है बाल की खाल निकलने वाली। तो ये इनका सबसे बड़ा दुश्मन है, तो इनको इस पे काम करना चाहिए, नहीं तो जिंदगी को मुश्किल में डाल देंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बट ही कैन बी ए गुड कंसल्टेंट, ही कैन डू गुड अदरवाइज इन समथिंग टू डू विद फूड, समथिंग टू डू विद केयर, कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड चीजें, कुछ केयर से रिलेटेड चीजें, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड चीजें में इनको सक्सेस मिल सकता है। इंडिया के बाहर जाने का इनका बड़ा मन करता होगा, पता नहीं गए कि नहीं, मुझे नहीं पता। अब तो 35 साल इनकी उम्र होने वाली है दिसंबर में। बट इनका कोई ना कोई कनेक्शन मुझे लगता है बाहर से बनाने की इन्होंने कोशिश की जरूर होगी, या गए होंगे, या जाने वाले हैं, या अभी भी जाना चाहते हैं, आई हैव नो क्लू। बट इनका सोच बड़ा डिटेल वाला है। सुन रहे हैं भाई साहब, क्या नाम है इनका? राज। ये राज की बात जो है ये सही है कि नहीं? एक आपसे और शिकायत कर रही है, वो बोल रही है कि बरमानी साहब कह रहे हैं कि हमने 100 टाइम्स लिख दिया है, 100 टाइम्स। सभी की यही शिकायत है। देखिए लिमिटेड टाइम है और ऐसे में सबका सवाल लेना इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल। वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ आल्सो एंड बाकी बातें भी हम कर रहे हैं। तो राज कह रहे हैं यस। तो राज को बचाना मैंने। तो राज, आपको मैं खाली इतनी एडवाइस करना चाहता हूँ, आपके अंदर क्वालिटीज और बेहिसाब है भाई साहब, लेकिन आपको उसको डिफिकल्टी में मत डालिए, बिकॉज यू हैव ऑल द क्वालिटीज टू मेक योर लाइफ कॉम्प्लिकेटेड बाय थिंकिंग टू मच। ही इज सेइंग ट्रू सर। देखिए
रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट पब्लिक के सामने ये, मैं इनको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ एक तरह से ताकि ये रियलाइज कर लें, लेकिन ये उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो राज, आप मेरी बात आज समझ गए। वैसे तो आप, यू आर ए गुड हार्टेड पर्सन, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू नो, यू आर वेरी केयरिंग, सबकी हेल्प आप भी करते हैं, बहुत पैशनेट है, जिंदगी को एंजॉय करने की कोशिश आपकी रात दिन लगी रहती है। आई नो अभी तो मुश्किल हो गई होगी आपको, बट आप एक रूबी और एक येलो सफायर ये स्टोन पहन सकते हैं, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। लेकिन जस्ट गो विद द फ्लो, दिस इज अ राइट आइडिया, एंड यू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट विद ओवरसीज, बाहर के कंट्रीज आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जरूर रहेगा, और आपको भी, आपका भी मन किसी जॉब में नहीं लगता, यू रियली वांट टू डू समथिंग ऑफ योर ओन, एम आई राइट? आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वैसे ही आपकी आदत है, वैसे ही आपका नेचर है, वही आपकी सोच है। तो आई होप यू फाउंड योर आंसर्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा, इतने लोग परेशान है, अगर किसी को लगता है कि उनका कोई ऐसा सवाल है जो पब्लिक के सामने नहीं पूछ सकते, एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी वन ऑन वन, देन यू कैन गो टू माई वेबसाइट which is sandeepkochar.com and you can connect me from there, you know? तो बिकॉज सबका यहाँ पे देखिए, राज कह रहे हैं, I was just thinking कि अभी जस्ट यही बोलूंगी, सर का फिनिश होते ही मैं यही बोलूंगी, क्योंकि लोग परेशान है। हाँ, मैंने कहा आपको ब्लेम करें, इसलिए मैंने आपके बिहाफ पे ये बात बोल दिया। राज ने मेरी बात, राज ने कबूल कर लिया, he is saying whatever I've said is right, this is what he is planning, so right, you please follow my advice and definitely it will be good for you. So to all the viewers out there, the ones asking questions, you can definitely search on Google. It's sandeepkochar.com and आप उनके वेबसाइट पे जाके उनसे कंसल्ट कर सकते हैं. You can take online consultation as well. Sir is available for you anytime. Yes, sir, right? Definitely, that's my profession. Absolutely, sir. Absolutely. All right. राज, आपको धन्यवाद, राज आपको धन्यवाद कर। सर एक सवाल सर यहाँ पर आया है हमारे पास नवीन महेश्वरी की तरफ से, 2 Jan 1966. And timing is 4:15 a.m. in the morning. Okay, place is रेवाड़ी, I believe. रेवाड़ी, हाँ, रेवाड़ी हरियाणा। अच्छा, मैं कह रहा था आपने शो होस्ट किया हरियाणा में। Alright, so वो पूछ रहे हैं करियर एंड सक्सेस कब मिलेगी? हाँ, देखिए, क्या नाम बताया इन्होंने, आपने? नवीन महेश्वरी। नवीन जी को बचपन से ये लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, ही बिलीव इन टेकिंग इनिशिएटिव। इनको आप लाख समझा लीजिए, नवीन मत करो भाई, ये तुमसे। 1966 बोला आपने? 66। ओह, तो ही इज 54 नाउ, तो इनको थोड़ा सा तभी से पेश आना पड़ेगा मुझे। देखिए, नवीन जी का सबसे बड़ा जो वो है, क्योंकि आपने सारे क्वेश्चन अभी तक 2099 उस एज के लिए, तो मैं भूल गया कि अभी ये किसी के फादर आ गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आपके अंदर क्वालिटी क्या है, सबसे बड़ी आपकी क्वालिटी है कि यू बिलीव इन टेकिंग इनिशिएटिव, और ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। दूसरी बात है कि आपका बहुत ही माइंड इतना शार्प है, यू नो, यू कैन जज एनीथिंग, एंड मुझे अभी भी लगता है कि 54 आपकी एज हो चुकी है, बट स्टिल यू हैव ए डिजायर टू लर्न मोर एंड मोर। आप कुछ भी सीखने की आपके अंदर काबिलियत है, और आपको अगर जरा सा भी इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी सीखने में, मुझे लगता है वो भी सीख जाएंगे। डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इन लर्निंग एस्ट्रोलॉजी? बताइए। नवीन नाम बताया था ना? नवीन जी, नवीन जी। और इंट्यूशन भी आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है, ये भी मैं कह सकता हूँ, और बहुत आइडियलिस्टिक इंसान। वो बच्चन साहब का जो मूवी में था ना कि उफ तुम्हारे उसूल तुम्हारे आदर्श, तो उसूल और आदर्शों पे चलते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं, ये आसान काम नहीं, यू नो, ये जमाना बहुत डिफरेंट है, एंड नो वन फॉलोज वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स इन लाइफ, बट नवीन साहब अभी भी वो मेंटेन किए हुए हैं। इट इज अ ग्रेट थिंग टू हैव, तो ये बहुत बड़ी बात है, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। आपको पुखराज आपने पता नहीं पहना है कि नहीं पहना, पुखराज आप पहने रहिए भाई साहब। और देखिए, अभी चलने दीजिए जिंदगी को। कई बार क्या होता है, नो डिसीजन इज बेटर देन बैड डिसीजन। तो अभी आप कोई भी काम ऐसा ना करें जो आप बैकफायर हो, क्योंकि एक तो माहौल ठीक नहीं है, तो माहौल पूरी दुनिया का गड़बड़ा गया है, तो ऐसे में आप कुछ भी नेगेटिव करने की कोशिश मत करें, यू नो। तो ये कह रही है कि आपने उनके हस्बैंड को ब्लॉक कर दिया कमेंट करने के लिए, किसी ने आपके ऊपर इल्जाम लगा दिया, वो पता क्या हुआ होगा? आपने वो टच किया होगा, नहीं होता है ये, जैसे आप टच कर रही है ना, तो उसी में 2 बार क्लिक हुआ, वो ब्लॉक हो जाएगा। ओके, बट मैं इसलिए स्क्रॉल साइड में कर रही हूँ। आई डोंट नो मैंने किया हो किसी को, तो आई एम रियली सॉरी अगर किया हो तो। आप नहीं, वो ऑनलाइन आ गई, आप डाल दीजिए सवाल। हाँ, आप डाल दीजिए उनके बेहाफ पे। देखिए, ये बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, शक्ल से लग रही है क्या ब्लॉक करने वाले? बिल्कुल नहीं लग रही। तो ये गलती से हो गया, टेक्नोलॉजिकल है, ये ऐसा हो जाता है। मुझसे भी एक बार हुआ था, किसी ने कहा था कि आपसे उम्मीद नहीं थी, तो मैंने कहा यार मुझे मैंने नहीं किया था, तो आई अंडरस्टैंड। तो ये बहुत बढ़िया इंसान है नवीन। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, चलने दीजिए। 2022 सितंबर से
आपकी जिंदगी में मेजर चेंज आएगा, एंड देन लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज इन योर लाइफ। 3 साल इट विल बी वेरी वेरी गुड, लेकिन वो सब होगा 2022 सितंबर से। तो ये कम से कम 21 22 2 साल आप निकलने दीजिए, उसके बाद एवरीथिंग इज गुड। ऑलराइट सर, एक सवाल है जो आई बिलीव हर हर मैसेज के बाद आ रहा है। दैट्स फ्रॉम रिची एंड शी इज रियली डिप्रेस्ड एज ऑफ नाउ एंड शी इज आस्किंग, ओके, so the timing has started but we'll have to end this here because 1 घंटा हो चुका है and ओह countdown start हो चुका है। Yes, जी so to बिल्कुल, all the चलिए guys थैंक out यू। there, yes, thank you so much sir, that was a pleasure वेलकम। meeting you, that was I'm really honored to have you on board, thank you so much। जी so वेलकम। जितने भी हमारे viewers हैं, those who are watching now, you can definitely search him on Google, www.sandipkoche.com।